Students, today we are going to discuss consumers equilibrium by indifference curve analysis. So, as we know that indifference curve analysis approach uses the ordinal utility approach. Here, we do not measure the exact value of the satisfaction, but we rank the satisfaction. So, we have seen the indifference curve and its various properties. Now we'll see that when consumer gets maximum satisfaction, when consumer gets in equilibrium, we discussed the meaning of consumer's equilibrium, and we saw that when consumer gets maximum satisfaction and there is no tendency to change, it means consumer is in equilibrium. So consumer's equilibrium refers to a situation in which a consumer derives maximum satisfaction with no intention to change it and subject to given prices and his income. So a situation in which consumer derives maximum satisfaction with no intention to change it and subject to given prices and his income. As we know that price is constant here, in this case income will also be constant, and in that case when consumer gets in equilibrium, the position where consumers gets the maximum satisfaction is the point of equilibrium. So here we will learn the point of maximum satisfaction by studying the indifference map and budget line together, because indifference map and budget line both are important, because we know that consumers gets higher satisfaction if bundle of combination is represented on higher indifference curves, means higher indifference curves, higher satisfaction. But budget line is very important in this case to decide the combination, because consumer can go up for more and more satisfaction as per the budget, as per the income of the consumer, as per the purchasing power of the consumer. Suppose if higher indifference curve gives higher satisfaction, but consumer does not have income, consumer does not have purchasing power to purchase the combination representing on that indifference curves, so in that case consumer will not be able to achieve that. Therefore budget line is important here. So budget line and indifference curves both should be equal in this case. So how it should be equal, that we are going to discuss. Now the consumers will be in equilibrium when it will fulfill two conditions. What are the two conditions? पहला क्या है? First one is that MRS, marginal rate of substitution of x for y इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइसेस और PX बाई PY. हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है उसको हम लोग देख चुके हैं. ये जो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है, जो कर्व होता है, उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही जो है आपको पता किया जाता है. तो MRS ऑफ x फॉर y का मतलब ये हुआ कि वो y को x के लिए जो है एक यूनिट ऑफ x को यदि बढ़ा रहा है तो y कितना y को वो छोड़ रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है. ये इक्वल होना चाहिए किसका? तो रेशियो ऑफ प्राइसेस यानी कि PX डिवाइड बाई PY. PX एंड PY का जो है रेशियो जो होता है उसके बराबर होना चाहिए. तो देखिए जो बजट लाइन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इसको PX बाई PY. जब हम लोग प्राइस ऑफ X को डिवाइड करते हैं प्राइस ऑफ Y से तो वो आपको बजट लाइन देता है. जो हम लोग लाइन बजट लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो आपको प्राइस से जो है आपको वहाँ पे निकाला जाता है. ठीक है, तो जब प्राइस का रेशियो हम लोग निकालेंगे इसका मतलब बजट लाइन उसको रिप्रेजेंट करेगा. तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे MRS यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स होना चाहिए. ठीक है, मैक्सिमम कन्वेक्स होना चाहिए. एंड प्राइस ऑफ X बाय प्राइस ऑफ Y, इसका जो रेशियो दोनों बराबर जिस पॉइंट पे हो जाएगा वो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा. सेकेंड है MRS कंटिन्यूसली फॉल्स. जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो घटते रहना चाहिए, घटते जाना चाहिए. हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों घटते जाता है. ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम लोग
एक्स को इंक्रीज करते जाते हैं तो उसका जो है सब्स्टिट्यूशन क्यों घटते इसलिए घटते जाता है क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा मान लीजिए एक्स को यूज कर रहे हैं तो उसको जो है सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर को धीरे धीरे उसके प्रति जो है कम होने लगता है और वो वाई को छोड़ने का जो टेंडेंसी है उसका कम होते जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। तो दो कंडीशन आपको याद रखना, पहला है रेशियो ऑफ प्राइसेस दैट इज px by py should be equal to mrs of x for y। सेकेंड है mrs should be falling continuously falls, और इसी के चलते जो है आपको जो कर्व होता है वो होता है कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है ना। अब इस कर्व में देखिए कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पे है। कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई व्हेन बजट लाइन ए बी इज जस्ट टेंजेंट टू IC2। यहाँ पे तीन कर्व है इंडिफरेंस कर्व, IC1, IC2 एंड IC3। ना आपको मालूम है कि IC3 पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है कंज्यूमर को मिल सकता है क्योंकि वो हायर इंडिफरेंस है, हायर इंडिफरेंस कर्व है, और हम लोग जानते हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो डेफिनेटली कंज्यूमर टेंड्स टू occupy the position of IC3. Consumers want to touch the combination of IC3, but it is not possible. Do you know why? Because it is out of budget. It is out of purchasing power of the consumer. It is out of income of the consumer. So it is difficult. It is almost impossible for the consumer to get a bundle of combination of X and Y ऑन IC3। तो IC3 पे नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि बजट लाइन जो है वहाँ पे आपको नहीं जा रहा है। IC1 पे भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा क्योंकि वो जो है आपको सबसे नीचे में जो आपको कर्व है, आपको मालूम है कि लोअर इंडिफरेंस कर्व्स गिव्स लोअर सेटिस्फेक्शन। सो निश्चय ही IC1 पे जाना नहीं चाहेगा कंज्यूमर क्योंकि सबसे नीचे में है। तो आपको IC3 हो गया, तो IC3 पे कंज्यूमर जो है आपको अचीव कर सकता है, IC2 पे जो है कंज्यूमर रीच कर सकता है, जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बजट लाइन जो है वो भी आपको टच कर रहा है। तो ये जो पॉइंट E है इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए कि जो बजट लाइन AB है वो आपको IC2 कर्व को टच कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। आप जब सर्कल पढ़े होंगे क्लास 10 में तो जानते होंगे कि कोई स्ट्रेट लाइन यदि सर्कल का एक पॉइंट को टच करता है, बाहरी एक पोजीशन को टच करता है, उसको लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो ये जो आपको AB बजट लाइन कर्व है ये आपको टेंजेंट है IC2 का। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व 2 का। तो इसका मतलब जो E कॉम्बिनेशन है इंडिफरेंस कर्व 2 पे जो E कॉम्बिनेशन है वो कंज्यूमर अचीव कर सकता है क्योंकि वो उसके बजट के अंदर में है। बजट जो है बजट लाइन उसको टच कर रहा है IC2 को। तो पॉइंट E इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो पॉइंट E इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो दो जो कंडीशन था ये देखिए, पहला कंडीशन देखिए, पॉइंट E पे जो है वो प्राइस ऑफ X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y, यानी कि प्राइस का जो रेशियो है जो टेंजेंट डिसाइड करे वो और इंडिफरेंस कर्व यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दोनों इक्वल है इस पोजीशन पे, क्योंकि दोनों जो है टच कर रहा है, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों जो एक दूसरे को टच कर रहा है उस पोजीशन पे। तो इसीलिए ये पॉइंट आपको हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको याद रखिए बजट लाइन इज आल्सो नोन एज प्राइस रेशियो। ठीक है, तो प्राइस रेशियो भी शो करता है बजट लाइन दो गुड्स का। तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि टच कर रहा है एक दूसरा को, तो ये आपको हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कन्वेक्स है, IC2 जो है यहाँ पे E के पास में कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ठीक है, ये कॉनकेव होता है, ये कन्वेक्स होता है। तो ये क्या है? कन्वेक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ये इक्वल है आपको बजट लाइन का। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये है आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि MRS इज़ फॉलिंग, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो फॉल कर रहा है, और इसीलिए फॉल चूँकि कर रहा है, जिस तरह से हम लोग X की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये जो है टेंडेंसी कम होती जा रहा है Y को छोड़ने का। तो इसीलिए इसका शेप जो है आपको कन्वेक्स हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम आपको कन्वेक्स है
तो आप ये जो है इस पॉइंट को आप बोल सकते हैं इट इज़ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आगे देखते हैं। तो दो चीज़ को याद रखना, पहला कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपको कन्वेक्स होना चाहिए, कन्वेक्स ओरिजिन होना चाहिए। वैसे भी इंडिफरेंस कर्व जो है आपको कन्वेक्स ही होता है। दूसरा ये है कि जो बजट लाइन है वो टच करना चाहिए। तो जिस पोजीशन पे बजट लाइन टच करेगा इंडिफरेंस कर्व को, वही हो जाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। टच का मतलब यहाँ पे जो है आपको टेंजेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो जगह पे टच किया। जैसे देखिए IC1 को दो जगह टच करा है, यहाँ भी टच करा है, यहाँ भी। तो इसमें जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, यहाँ पे टेंजेंट होना चाहिए। द बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व IC2 एट पॉइंट, ठीक है। So purchase consumer purchase OM quantity of commodity X and ON quantity of commodity Y, ये हम लोग देख लिए। A budget line can be tangent to one and only one indifference curve. Consumer maximizes his satisfaction at point E when both the conditions of consumers equilibrium are satisfied. कौन कौन सा condition? At point E, MRS equal to ratio of prices, that is PX by PY, because slope of indifference curve and slope of budget line are same. वो हम लोग देखे कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन दोनों एक दूसरे का टच कर रहा था। तो जहाँ पे टच कर रहा था इसका मतलब दोनों वहाँ पे इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ बजट लाइन दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि MRS एंड प्राइस रेशियो दोनों बराबर है। MRS शो कर रहा है इंडिफरेंस कर्व को और प्राइस शो कर रहा है बजट लाइन को। MRS continuously falls. The second condition is also satisfied at point E, as MRS is diminishing at point E, that is IC2 is convex to the origin at point E. IC जो है आपको IC2 जो है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन ऑफ पॉइंट E के पास में, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गया एंड वहाँ पे कंज्यूमर्स जो है आपको इक्विलिब्रियम में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। वी हैव अंडरस्टूड द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। थैंक यू।